Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome everybody. I am Dr. Amjad Ali and now I am going to deliver lecture number 6 for the course of Advances in Human Resource Development and Management. So before proceeding further, let me give you the review of the last lecture, what we have covered in the last lecture here. In that lecture we have discussed what is job design. Actually, by designing job, we actually combine different tasks, activities, responsibilities in order to make it a meaningful work unit in the entire organization for the production of its products and services in order to achieve organizational objectives. In that lecture we have also discussed various approaches to job design. We have discussed how to design jobs that are efficient. We have also discussed how to design jobs that motivate. Here under this motivating job design we discuss job characteristics model that have that says that there are 5 different characteristics of any job that would be making it either a motivating one or a less motivating job. These are task skill variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback of a job. So the combination of and the presence of all of these job characteristics would be making it a meaningful and motivating job. Well, under this option we have discussed various options for designing motivating job. Here we have discussed job enlargement. Under this we have discussed job extension, job rotation. Then we have discussed job enrichment, self managed work teams हमने ये डिस्कस किया. उसके अलावा हमने कुछ और स्ट्रेटजीज उसमें डिस्कस की थी. नेक्स्ट वी डिस्कस हाउ टू डिज़ाइन ergonomics job, that what are the requirements of human body as the physiology dictates, and how to design work environment. उसका work जो station है, work environment, work design कैसा हो, so that human physiology is able to give maximum output in terms of taking lesser time, incurring lesser fatigue, and producing high in terms of quantity or quality. Next we have also discussed jobs that meet mental capabilities and limitations. Here we said that as there are capabilities and limitations of human body, there are capabilities and limitations of human mind. So we are to actually address human mind capabilities and limitations of human mind by actually lessening the information processing requirement of any job. तो इसमें आपने कहा कि different aids हो सकते हैं, different job instructions हो सकती हैं, easy to read वो indications या gauges हो सकती हैं, instructions ऐसे बात हुई है वो हो सकती हैं, और different gadgets या technology tools हो सकती हैं. इसमें cash register हो सकते हैं for a cashier job, और डिफरेंट और चीज़ें हो सकती हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की. दिस वाज द रीकैप और रिव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 6. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर? Well, here we would be discussing what is labor market and what are the components of a labor market. What is strategic human resource, how strategic human resource decision are actually linked with strategic recruiting decision, how we can recruit human resources, what are the factors these personnel policies, recruiting sources, and recruiter traits and behaviors actually affect the way we recruit and are the people who we would be recruiting. So these are the learning objectives for our today's lecture. Now starting with this lecture, what is recruiting? Actually this is a process of generating a pool of qualified applicants for organizational jobs. So
we have any job with us, either it may be a trainee engineer, it may be a management trainee, it may be a sales supervisor, it may be a worker that would be working on spindles or assembly line. तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम ऐसा एक पूल क्रिएट कर सकें जिसमें से हम अपनी चॉइस बना सकें. We are to actually select the best candidate that is available. So first of all, we are to generate a pool of applicants out of whom we can pick the best. So recruiting is actually responsible to create or generate that pool of potential or qualified applicants in order to fill job openings for your organization. ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जी what is labor market, labor force, external market है from where we are to source our human resources. What are different concepts within this labor market? First one is labor force population. So what is labor force population? It is all individuals. Labor force population is actually all individuals who are available for selection if all possible recruiting strategies are used. तो इसमें सारे जो लोग available हैं आपकी मार्केट में, लेबर फोर्स मार्केट में, who are available if organization uses all possible recruitment strategies. तो ये जो आपके recruitment strategies आपने यूज करनी है, इसकी बेस पे आपके डिसाइड होंगे what is labor force population. So आप अगर इंटरनेट पे ऐड देते हैं तो उसकी लेबर फोर्स पॉपुलेशन कुछ और हो जाएगी. अगर आप जॉब में ऐड देते हैं लेबर फोर्स पॉपुलेशन कुछ और हो जाएगी. अगर आप एक कंसल्टेंट एजेंसी को हायर करते हैं, आप एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को हायर करते हैं तो लेबर फोर्स और हो जाएगी. सो द वे यू एक्चुअली इंटरैक्ट और कम्युनिकेट विद द लेबर मार्केट, एक्सटर्नल लेबर मार्केट, इट वुड बी एक्चुअली डिजाइनिंग लेबर फोर्स पॉपुलेशन. तो इसमें लेबर फोर्स पॉपुलेशन जो है ना आपके डिपेंड करता है उस चीज़ पे दैट विच मेथड डू यू अप्लाई इन ऑर्डर टू रिक्रूट लेबर फोर्स. नाउ व्हाट इज एप्लीकेंट पॉपुलेशन? स्टूडेंट्स, ये जो लेबर फोर्स पॉपुलेशन, एप्लीकेंट पूल है, ये मैं आपको शो करूँगा एक डायग्राम से. इसमें आपस में क्या लिंक है. एप्लीकेंट पॉपुलेशन क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ लेबर फोर्स दैट इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन यूजिंग अ पर्टिकुलर रिक्रूटिंग अप्रोच. तो आप जब एक अप्रोच यूज करते हैं तो उसकी एप्लीकेंट पॉपुलेशन क्या होती है, आपके लिए उस अवेलेबल क्या है. इसमें आपके लिए एप्लीकेंट पॉपुलेशन डिटरमिन होगी ऑन डिफरेंट फैक्टर. फॉर एग्जांपल, आप क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर करते हैं उसके लिए. दिस मैनेजमेंट ट्रेनी शुड बी एटलीस्ट बिजनेस ग्रेजुएट, तो BBA और MBA वाले ही अप्लाई कर सकेंगे. सो आपकी एप्लीकेंट पॉपुलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड. अगर आप कहते हैं कि एनीबॉडी विद ग्रेजुएट डिग्री वुड बी आर एनकरेज टू अप्लाई, तो आपकी एप्लीकेंट पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, आप उसमें कुछ और रिक्वायरमेंट्स, कुछ और चीज़ें कर देते हैं, एक्सपीरियंस कर देते हैं और कोई ऐसी लिमिटेशंस कर देते हैं. आप उसमें कह देते हैं कि ये ट्रेड्स या ये करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. या आप कहते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़, ग्रेजुएट इंजीनियर्स ऑफ दिस वेरी यूनिवर्सिटी आर एनकरेज कैन ओनली अप्लाई, आर ग्रेजुएट्स हु हैव एटलीस्ट 3 GPA. तो आप अपनी एप्लीकेंट पॉपुलेशन को रेस्ट्रिक्ट करते जाते हैं बाय गिविंग वेरियस क्राइटेरिया इन योर एड. सो आपकी एप्लीकेंट पॉपुलेशन क्या है? इट्स अ सबसेट ऑफ लेबर फोर्स पॉपुलेशन दैट इज अवेलेबल थ्रू ऑल रिक्रूटमेंट सोर्सेज. और इसमें आप पर्टिकुलर लगाते हैं और उसमें आप जो क्राइटेरिया लगाते हैं उसकी बेस पे आपकी एप्लीकेंट पॉपुलेशन डिटरमिन होगी. एंड नाउ व्हाट इज एप्लीकेंट पूल पॉपुलेशन और अब एप्लीकेंट पूल क्या है? दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली इवेल्युएटेड फॉर सिलेक्शन, जिन लोगों ने अप्लाई किया है. ठीक है ना. अब ये एप्लीकेंट पूल क्या है? इट्स अ सबसेट ऑफ एप्लीकेंट पॉपुलेशन. अब ये कैसे डिफरेंट है? एप्लीकेंट पॉपुलेशन और एप्लीकेंट पूल कैसे डिफरेंट है? आपने कह दिया कि जी वी नीड पीपल विद यूनिवर्सिटी डिग्री, दिस पर्सन शुड बी बिजनेस ग्रेजुएट
नो थर्ड डिवीजन, 3 GPA इन हाईएस्ट डिग्री, और इसकी ये ट्रेड्स होनी चाहिए, ये आपने क्या दिया। सो इट डिटरमिन्स योर एप्लीकेंट पॉपुलेशन। अब उनमें से सारे तो नहीं अप्लाई करेंगे, सो द पीपल हु अप्लाई ऑन योर जॉब एड इन रिस्पॉन्स टू योर जॉब एड would constitute applicant pool. So the reputation of your organization as an employer, the reputation of the industry would determine this applicant pool. तो out of this applicant population, उसमें से कितने लोग अप्लाई करते हैं, to whom you would be evaluating actually for the purpose of recruitment and selection, would constitute applicant pool. और ये कैसे different एप्लीकेंट पॉपुलेशन से एप्लीकेंट पूल कैसे डिफरेंट है। सो एप्लीकेंट पॉपुलेशन वो जो सारे लोग हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर जॉब, और जितने लोगों ने अप्लाई किया है ये एप्लीकेंट पूल है। दिस इज अ डिफरेंस। लेट मी शो यू ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो इसमें टॉप पे है जी लेबर फोर्स पॉपुलेशन। इसमें सारे लोग वो हैं जो अवेलेबल टू वर्क हैं against any job if you use all of the recruitment sources, recruitment methods, और applicant population जो एक आपने particular use किया recruitment method। applicant pool वो लोग जिनको आपने evaluate किया, जिन लोगों ने actually apply किया, ठीक है ना। अब ये इन दोनों में difference क्या है कि जो ये वो लोग हैं applicant pool जिन्होंने आपकी ad के response में apply किया, who have actually considered you as a good employer, एज अ रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयर। वो जो आपसे इम्प्रेस हुए हैं, आपकी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो लोग। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं जी टेलीकॉम में जाऊंगा, प्रेफरेंस होती है ना कि मैं बैंकिंग में जाऊंगा, सीमेंट इंडस्ट्री में जाऊंगा, मैं टेक्सटाइल में नहीं जाऊंगा, मैं फलां जगह पे नहीं जाऊंगा, मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जाऊंगा। तो ये किसी की अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है किसी भी इंडस्ट्री की। फिर उस इंडस्ट्री में किसी ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज कैसे लिया जाता है, दे आर बेस्ट एम्प्लॉयर। सो सर्टन ऑर्गेनाइजेशन आर टेकन एज बेस्ट एम्प्लॉयर दैट दे टेक केयर फॉर द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, they are good in respect of employee needs or concerns or their motives or their advancement or their promotion. तो applicant pool कैसे determine होता है? By the way actually applicants perceive the organization, perceive the employer. और final है जी individuals who have been selected. So this is how these different concepts are related to each other. Now before going to recruit employees for any job opening, organization is required to take certain strategic decisions. Students हमने इससे पिछले lectures में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ी, फिर जॉब एनालिसिस पढ़ा, फिर जॉब डिज़ाइन पढ़ा। ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन उसके HR डिपार्टमेंट की। सो HR डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड HRM। इसे हमने कहा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू हमने पढ़ लिया, स्ट्रेटेजिक HR प्लानिंग के थ्रू पढ़ लिया। फिर और इस HR डिपार्टमेंट ने जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन करनी, इसका एक और एक्टिविटी होगा। इस जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन की बेस पे सारी चीज़ें बेस कर रही हैं, उसकी प्लानिंग, उसके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी ओरिएंटेशन, उनके प्लेसमेंट, उनकी कैरियर ग्रोथ, सारी चीज़ें इस जॉब एनालिसिस के ऊपर बेस कर रही हैं। नेक्स्ट उसका फंक्शन हम कह रहे हैं एक स्टाफिंग कह लें, उसमें रिक्रूटमेंट हो जाती है या सिलेक्शन हो जाती है। इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि हाउ टू रिक्रूट, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर रिक्रूटमेंट एंड हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाई वेरियस डिटर्मिनेंट्स और वेरियस फैक्टर्स। कैसे अफेक्ट करते हैं? एक्चुअली ये जो रिक्रूटमेंट है, it creates a buffer between HR planning, HR strategic planning and selection. Actually ये क्या है? HR planning, HR plans, और दूसरी साइड पे हमारे पास सिलेक्शन। ये रिक्रूटमेंट इन दोनों चीजों के दरमियान में एक बफर है, इन दोनों चीजों को प्रॉपरली लिंक करता है। सो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग दिस रिक्रूटमेंट,
we are to discuss certain strategic issues that are very much pertinent to take these recruitment decisions. So as we have shown, we have discussed here that recruitment is a buffer, it's in between HR plans and selection of employees. So we should be very much concerned with this recruitment purpose, because we are to fulfill certain strategic decisions, that is company-wide decisions. We are to take care of these decisions that are company-wide. So what are the strategic concerns from the perspective of recruitment? So here we are going to discuss, before starting any recruitment process, that what are decisions that management is to take. So first, management would be deciding that whether this recruitment should be done within organization or it should be outsourced. लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था ना कि जॉब एनालिसिस के लिए हम आउटसोर्सिंग कर सकते हैं चीज़ें, इस तरह रिक्रूटमेंट के लिए भी हम ये आउटसोर्सिंग कर सकते हैं. डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं. आजकल आप संडे का न्यूज़पेपर उठा के देखें तो उसमें कतर में, दुबई में, बहरीन में, ओमान, सऊदीया, हर जगह पे जॉब आई होती हैं. और वो कहाँ से रिक्रूटमेंट कहाँ से कर रहे हैं? पाकिस्तान से. ठीक है, दिस इज ग्लोबल रिक्रूटमेंट. और वो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो कंसल्टेंसी, वो कंस्ट्रक्शन फर्म, वो बैंक, वो हॉस्पिटल यहाँ नहीं आते. They actually engage certain employment agencies within Pakistan, and they actually perform this recruitment function on behalf of those clients or principal companies. तो पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड करना है whether this recruitment function should be performed in-house or it should be outsourced to some external agency. अच्छा, इसमें आउटसोर्सिंग में क्या करते हैं जी? दिस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आउटसोर्स हमने कर दिया एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को, ठीक है ना. अदरवाइज अगर हम रिक्रूट इंटरनल कर रहे हैं तो HR डिपार्टमेंट करेंगे या लाइन मैनेजर करेंगे. अगर आउटसोर्स कर दिया तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी क्या करेगी? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्लेस एड्स. अब यहाँ पे जो एड्स आ रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म्स दैट आर बेस्ड इन गल्फ, तो ये एड्स कौन? लोकल एजेंसीज दे रही हैं, ये वो नहीं दे रहे. इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ रिज्यूमे, ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज क्या कर सकती हैं? रिक्रूटमेंट एजेंसीज क्या कर सकती हैं? जॉब एड्स प्लेस कर सकती हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग कर सकती हैं रिज्यूमे के, और initial contact with the applicants कर सकते. So they would be actually making a contact of applicants with the employers who are actually sitting in certain cross border locations. तो ये क्या है? different activities that can be performed by employment agencies that have been hired by different principal organizations. अच्छा, फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के वेदर दीज एम्प्लॉयज शुड बी हायर्ड फॉर रेगुलर बेसिस आर एज फ्लेक्सिबल स्टाफिंग. रेगुलर आप परमानेंट हायर कर लेंगे, सो इट वुड बी योर लायबिलिटी. यू आर रिक्वायर्ड टू पे देम मंथली सैलरी प्लस बेनिफिट्स. अगर आप फ्लेक्सिबल हायरिंग की तरफ जाते हैं, सो हेयर यू आर नॉट लायबल टू पे देम monthly salary. You may actually have engage your company with different options in order to hire on flexible basis, and you may actually refuse them on any month because they are working with you on contract basis. And second, you are not required to pay them benefits. और benefits नहीं, simple आपने उनको salaries देने. अच्छा, flexible staffing makes use of recruiting sources and workers who are not traditional employees. तो जो flexible staffing है, इसमें उन लोगों को हम लेके आते हैं जो ट्रेडिशनल वर्कर्स नहीं हैं. इसमें हम टेम्परेरी वर्कर्स ले सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि अपनी जो HR प्लान्स है उसमें अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ HR है, शॉर्टेज ऑफ वर्क फोर्स है, तो आप क्या करेंगे? टेम्परेरी वर्कर्स ले सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स. दीज आर द वर्कर्स हु परफॉर्म स्पेसिफिक सर्विसेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. तो कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको अवेलेबल होते हैं, वो आपका काम कर देते हैं, और जैसे आप काम खत्म है, दे आर फ्री. यू हैव नो लायबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ दोज एम्प्लॉयज. आपने उनको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, बस जो उनकी सैलरीज है वो आपने उनको देनी है. तो फ्लेक्सिबल जो आपकी ऑप्शन, फ्लेक्सिबल स्टाफिंग की ऑप्शन है, इसमें टेम्परेरी या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं.
ये ऑप्शन आप कब यूज करते हैं? व्हेन यू सी दैट द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट सर्विसेज इज टेम्परेरी, सीजनल डिमांड है, आपको पता है इसके बाद फिर एकदम एक स्लो डाउन स्लम्प सा आएगा आपकी प्रोडक्ट की डिमांड में, तो आप क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ हायरिंग ऑन परमानेंट बेसिस यू गो फॉर दिस फ्लेक्सिबल स्टाफिंग। कुछ लोग ऐसे ले लेते हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे आपके साथ इंगेज होते हैं। सो ये क्या है, आपने देखना है रेगुलर या फ्लेक्सिबल स्टाफिंग आप तब करेंगे व्हेन यू सी दैट देयर इज शॉर्ट टर्म हाइक हाइक इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और अगर आप फ्लेक्सिबल स्टाफिंग करते हैं टेम्परेरी या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, सो इट गिव्स यू एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी टू evaluate these employees as a potential permanent employees for your organization। तो जैसे हम कोई चीज़ परचेज करने से पहले ट्राई करते हैं ना, एक्चुअली ये ट्राई है, ट्राई बिफोर यू बाय दिस प्रोडक्ट, तो आप उससे पहले ट्राई कर सकते हैं। और इन दिस वे यू कैन एक्चुअली हायर एम्प्लॉयज ऑन परमानेंट बेसिस हु यू फाइंड कॉम्पिटेंट एंड डिपेंडेबल। अच्छा, अब इसमें और कुछ ऑप्शन जो हैं that we can consider as strategic decision. This is diversity consideration, that how much diversity you are going to avail within your organization. Diversity के लिहाज से हमने इसमें कैसे लेके आएंगे diversity in terms of gender of employees, in terms of race, in terms of age, in terms of ethnicity, in terms of abilities, in terms of professions, in terms of occupations, आप different। तो इसके लिए डाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए आप क्या करें, यू आर टू डेवलप फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस। वर्क ऑप्शन आपके फ्लेक्सिबल हो, जैसे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जॉब डिज़ाइन में पढ़ा कि आपके वर्क ऑप्शंस वो फ्लेक्स टाइम हो, आपका टेलीकम्यूटिंग हो, आपका कंप्रेस वर्क वीक हो, ये फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस हैं। दूसरा फ्लेक्सिबल बेनिफिट ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बेनिफिट्स जो हैं मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये हम अपने फ्यूचर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंपनसेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें अब एक एम्प्लॉय के लिए पेंशन इंपॉर्टेंट है, एक एम्प्लॉय के लिए मेडिकल फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है, एक एम्प्लॉय के लिए आपकी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, लर्निंग डिफरेंट कोर्सेज पे जाना, उसके लिए अपनी एजुकेशन इम्प्रूव करना, क्वालिफिकेशन वो इम्पोर्टेंट है। किसी के लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इम्पोर्टेंट है, वर्किंग वीमन उनके लिए वो है जो ओल्ड एज में है, उनके लिए पेंशन पे है। जो कह लें कि यंगर एग्जेक्टिव है, यंगर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए अपनी प्रोफेशनल या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेवलप करना वो इम्पोर्टेंट। सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट different chunks of society, you have to offer flexible work schedules and flexible benefit options. So this is how to create or how to design diversity in terms of employees within your organization. और इसमें एक और चीज़ आपने देखनी है, you have to actually take care of equal employment opportunity. So your recruitment strategy should not be discriminating any employee on the basis of age, gender, race, anything else, उसकी affiliation, religion, sect, किसी चीज़ पे भी उसको आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। इसमें डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और गवर्नमेंट बनाती हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो योर रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपने जॉब एड्स में देखा होगा कि विद इन गिवन एड वो लिखा होता है वी आर एन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, ठीक है ना, इस तरह लिखा होता है। दिस बाय दिस वे दे आर गोइंग टू get rid of the fear of this charges on equal employment opportunity. So these are few of the strategic concerns regarding recruitment decisions. Now we are going to discuss how to recruit human resources. So recruitment decisions लेने से पहले हमने देखना है कि जो फाइनल जॉब चॉइस है, जो आप एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं, फाइनल जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, और वो लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, उनको आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज या आपका सारा प्रोसेस कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। व्हाट आर द एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वुड बी अल्टीमेटली ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं
उसको कौन कौन सी चीज़ें डिटरमिन करती हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ रिक्रूटिंग दैट वी वुड बी डिस्कसिंग हियर इन दिस लेक्चर। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ रिक्रूटिंग, इट इंक्लूड्स दिस पर्सनल पॉलिसीज, आपकी पर्सनल पॉलिसीज क्या है विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटिंग, रिक्रूटर ट्रेड्स एंड बिहेवियर, ये क्या है जिन लोगों ने हायर करना है, और रिक्रूटमेंट सोर्सेज आप कौन से यूज कर रहे हैं, ये हम देखेंगे एज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ रिक्रूटिंग। यही चीजें सारे अपनी फाइनल चॉइस को ये हमारा कंसिडरेशन क्या है, फाइनल जॉब चॉइस, कौन लोग हमारे पास आ रहे हैं, इस चीज को अफेक्ट ये 3 चीजें कर रही हैं, आपकी पर्सनल पॉलिसीज, रिक्रूटमेंट सोर्सेज यू एम्प्लॉय, और रिक्रूटर ट्रेड्स एंड बिहेवियर। अच्छा, ये पर्सनल पॉलिसीज अफेक्ट करेंगी वैकेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैकेंसी, ये क्या है यहाँ पे इफेक्ट पर्सनल पॉलिसीज। These are your plans and policies that you have adopted in terms of recruiting new employees. तो आप उसमें जो चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, जो चीज़ आप फॉर्मुलेट करते हैं, वो अफेक्ट करती है आपकी वैकेंसी करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो रिक्रूटमेंट सोर्सेज आप एम्प्लॉय करते हैं, इंटरनेट पे करना है, इंटरनल हायरिंग करनी है, आपने न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, आपने एम्प्लॉयमेंट एजेंसी लेनी है, आपने स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जाके हायर करनी है, तो ये जो रिक्रूटमेंट सोर्सेज दैट यू एम्प्लॉय वुड अफेक्ट एप्लीकेंट करैक्टरिस्टिक्स। ये देखें, ये क्या है, एप्लीकेंट करैक्टरिस्टिक्स, किस किस्म के लोग आपके पास अप्लाई करने के लिए आते हैं। और फाइनल जो जॉब चॉइस है दैट वुड बी मेड कि आप किन लोगों को जॉब ऑफर देते हैं और कौन लोग जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। दिस डिसीजन वुड बी एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द मैच बिटवीन वैकेंसी करैक्टरिस्टिक्स। पहले ये देखें, ये रिक्रूटर जो ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स है ना, ये चीज रिक्रूटर ट्रेड्स एंड बिहेवियर, ये वैकेंसी करैक्टरिस्टिक्स को भी इफेक्ट करते हैं, ये यूं वैकेंसी करैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, और ये चीजें आपकी एप्लीकेंट करैक्टरिस्टिक्स को भी इफेक्ट करते हैं, रिक्रूटर, ये हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी ये जरा तवज्जो दें, जॉब चॉइस इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द मैच बिटवीन वैकेंसी करैक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेंट करैक्टरिस्टिक। ये इनका जितना बेस्ट मैच होगा, जब बेस्ट मैच होगा तब वो जॉब चॉइस लेंगे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेंट के करैक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं विद वैकेंसी करैक्टरिस्टिक्स, तो ऑर्गेनाइजेशन उसे ऑफर करेगी। और जो अब क्या है, परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉय हु इज गोइंग टू ऑफ दिस ऑफर, वो जब ये परसीव करता है कि जी वैकेंसी करैक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं विद माई करैक्टरिस्टिक्स, then he would be accepting this job offer. Now we would be discussing these 3 aspects of recruiting in detail. So first aspect of recruiting is personnel policy, that how personnel policies would be affecting this characteristics of vacancies. So what are these personnel policies? Actually these are decisions about how it will carry out human resource management. हमने यहाँ पे तो क्या ना ओवरऑल पर्सनल पॉलिसीज, तो ये है कि हाउ इट विल कैरी आउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंक्लूडिंग हाउ इट विल फिल वैकेंसीज। तो ये वैकेंसी फिल करने वाली जो हमारी पॉलिसीज हैं उससे हम रिक्रूटमेंट पॉलिसीज क्या है, ओवरऑल जो सारी पॉलिसीज हैं हमारी पर्सनल पॉलिसीज हैं। तो ओवरऑल जो पर्सनल पॉलिसीज होंगी वो सारी हमारी रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करेंगी। So these personnel policy would affect vacancy characteristics. हमने पहले भी डिस्कस किया, ये हमारी वैकेंसी की characteristics अफेक्ट करेंगे। अब what might be possible personnel policies? हमारी पॉलिसी क्या हो सकती है कि जी क्या हमने इंटरनल रिक्रूटिंग करनी है या एक्सटर्नल रिक्रूटिंग करनी है। इंटरनल रिक्रूटिंग में हम करते हैं एम्प्लॉयज को प्रमोट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, or if we follow external recruiting, then we would be hiring employees from outside the organization. So if we have policy to recruit internally for some higher positions, managerial positions, so it would make our jobs attractive. Employees जो applicants हैं वो क्या देखते हैं कि जी यहाँ पे internal
चांसेस, ग्रोथ के चांसेस कितने ज़्यादा, प्रमोशन कितनी ज़्यादा। तो अगर उनको पता है कि जी इस जॉब में मैं वंस आई एम इंडक्टेड इन दिस जॉब, सो देर आर नंबर ऑफ चांसेस फॉर मी टू बी प्रमोटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, के पहले मैं इस लेवल, फिर इस लेवल, फिर इस लेवल पे। अगर आपको ये पता चलता है कि जी इस जॉब, मैं यहाँ पे अगर एंटर होता है इस बैंक में, तो सिंपल ये मुझे सेल्स की जॉब के लिए तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं कभी भी नहीं जा सकता। या फार्मास्यूटिकल की जॉब्स हैं तो उसमें आपको पता होता है कि जी सेल्स की जॉब में मैं वंस सेल्स प्रमोशन ऑफिसर हो जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कुछ उनको मैनेज या सुपरवाइज करना, इसके ऊपर मेरा कोई वो नहीं है, चांस नहीं है। सो the provision of this internal recruiting would make a particular vacancy more attractive, और जितना ज़्यादा उसमें इंटरनल रिक्रूटिंग के कम होंगे एलिमेंट विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उतना ज़्यादा उसकी वैकेंसी के चार्म कम होते हैं। लोग क्यों कमीशन जॉब लेते हैं, या लोग क्यों ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स लेते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि यहाँ पे इंटरनल प्रमोशन का रूल है, कोई बाहर से नहीं आ सकता, ठीक है ना। सो द प्रोविजन ऑफ इंटरनल रिक्रूटिंग मेक अ पर्टिकुलर जॉब मोर अट्रैक्टिव। Another personnel policy that would determine the characteristics of job would be lead the market pay strategy. तो कैसे आपकी पे स्ट्रेटेजी कैसे है, क्या ये लीड द मार्केट है या लैग द मार्केट है या एट पार विद मार्केट है। सो द टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी दैट यू यूज वुड बी डिटर्मिनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैकेंसी। सो ये लीड द मार्केट पे जो स्ट्रेटेजी है, इट कैन मेक अप फॉर जॉब्स लेस डिजायरेबल फीचर्स, जो उसके लेस डिजायरेबल फीचर्स हैं उसको कवर कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नाइट शिफ्ट ऑफर करते हैं ना, जैसे कॉल सेंटर या किसी भी फैक्ट्री में, किसी मिल में रात की भी तो शिफ्ट होती है, तो उसमें काम करने के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑफर कर देते हो। सो इट वुड एक्चुअली कंपनसेट द लेस डिजायरेबल फीचर्स ऑफ एनी जॉब, लीड द मार्केट पे। सो आपकी जो लीड द मार्केट पे स्ट्रेटेजी, इट वुड सर्टनली डेफिनेटली इट वुड डिटरमिन योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब। अच्छा, इसमें और पर्सनल पॉलिसी क्या हो सकती है दैट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटिंग इज एम्प्लॉयमेंट एट विल पॉलिसी। इसमें व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एट विल? हियर एम्प्लॉयमेंट प्रिंसिपल, इट इज एन एम्प्लॉयमेंट प्रिंसिपल दैट इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेइंग अदरवाइज, अगर कोई चीज नहीं है, द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मे एंड एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एट एनी टाइम रिगार्डलेस ऑफ द काज। तो इसमें क्या है जी, एम्प्लॉयमेंट एट विल है, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं, दे मे कम टू सीज अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी साइड पे होता है एम्प्लॉयमेंट विद ड्यू पॉलिसी, विद ड्यू प्रोसेस पॉलिसी। तो उसमें होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयर फायर करता है किसी एम्प्लॉय को, तो उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस कि पहले वो उसको वर्बल वार्निंग देगा, फिर रिटर्न वार्निंग देगा, फिर शो काज नोटिस, इस तरह एक प्रोसेस चलता है। और इफ दिस प्रोसेस नॉट फॉलोड इन अ प्रॉपर वे और इन अ डेजिग्नेटेड वे एज द रूल डिक्टेट्स, सो एम्प्लॉय में फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट दैट कंपनी। सो अब एम्प्लॉयमेंट एट विल पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट of due process policy would determine the characteristics of the job. So usually employees का देखते हैं कि जहाँ पे due process policy होती है उनके लिए वो जॉब ज़्यादा desirable होती हैं as compared to employment at will policy. अच्छा, इसमें another personnel policy that would determine characteristics of job is image or advertising. Actually this is advertising designed to create a generally favorable impression of the organization or of the industry. तो इमेज एडवर्टाइजिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जी नो पीपल आर नो मोर ऑप्टिंग दिस जॉब एज अ प्रोफेशनल। ये देखें जी इसके एग्जांपल, बी समवन, be a nurse. So this actually image advertising promotes the whole profession or organization as opposed to a specific job opening. ठीक है, तो इसमें एक होल प्रोफेशन को प्रमोट करें, आप पर्टिकुलर जॉब
पोजीशन को नहीं कर रहे. सो दिस एड इज एक्चुअली डिजाइन टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ द प्रोफेशन विच इज नाउ फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर. तो इसमें नर्सिंग को, ये अमेरिका की एग्जांपल है, इसमें नर्सिंग के प्रोफेशन को प्रमोट किया गया है. ये इमेज एडवर्टाइजिंग यूजुअली तब की जाती है जब हम देखते हैं किसी भी प्रोफेशन के लिए एप्लीकेंट्स कम हो रहे हैं. सो दीज पॉलिसीज, well, this is how personnel policies would be affecting the characteristics of vacancy. Now we are going to discuss how recruitment sources would be affecting the characteristics of the applicants. So there are two different types of recruitment sources. It can be internal sources, it can be external. So what are internal sources for recruitment? Internal sources can be employees who currently hold other positions in the organization. So इसमें internal sources, if we are going to hire employees from within the organization, so these would be internal sources. So what are the options for internal sources? We can go for organizational databases. Organizational databases, students, हमने last lecture में पढ़ा था human resource information system. So वहाँ पे हम सारा record रखते हैं employees का, एज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके प्रोफेशन, उनकी प्रोग्रेशन, उनकी ट्रेनिंग नीड्स या उनकी जितने भी डेवलपमेंट आपने की, सारा रिकॉर्ड है. सो इफ देयर इज अ न्यू वैकेंसी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द ऑप्शन टू गो थ्रू द डाटाबेसेस, चेक ऑफ द, आप कोई भी क्यूरी रन करें किसी भी प्रोफेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे या पर्टिकुलर ट्रेड्स की बेस पे आप रन करें, तो उसमें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डाटा regarding employees who are currently with your organization. So one source, internal source, can be organizational database. Another source of internal employees is promotions and job transfers. So actually you can fill current job vacancies by promoting employees from within the organization or transferring employees from one location to another. This can be another option. So if there is possibility for promotion, so employees would be attracted to that job. If there are no chances for promotion, internal promotion, then it makes this job less attractive. Another choice for internal source can be through job posting. Job posting क्या है, वो किसी जगह पे display करते हैं अपनी job ad within organization. So job posting is a process of communicating information about a job vacancy. आप अपनी job vacancy के बारे में information communicate करते हैं to the people who can be potential applicants. अच्छा, ये कहाँ पे होते हैं? उन कंपनी बुलेटिन बोर्ड्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय पब्लिकेशंस, न्यूज़लेटर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे हो सकते हैं, कॉरपोरेशन के इंट्रानेट हो सकते हैं, उसकी जो वेबसाइट होती है और उसके जो ईमेल का सारा सिस्टम है वहाँ पे कर सकते हैं, और एनीवेयर एल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इट कम्युनिकेट्स विद द एम्प्लॉयज. और इसमें एक और ऑप्शन होती है इंटरनल सोर्सेज की, दैट इज री रिक्रूटिंग फॉर्मर एम्प्लॉयज. ये उस तरह वो नहीं इंटरनल सोर्सेज, लेकिन ये भी हम इसे इंटरनल सोर्स कंसीडर करते हैं बिकॉज दे हैव वर्क फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. So internal sources, all of these internal sources affect the kind of people the organization recruits. तो जो internal sources हैं ये हमारे choice of people को affect करेंगे, किस तरह के लोग हमारे पास आते हैं. अगर हमारी पॉलिसी है internal sources यूज करने की, तो ये affect करेगी the kind of people who would be joining our organization. This is definite. अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. इसमें अगर तो आप इंटरनल सोर्सेज यूज करते हैं, सो इट बूस्ट मोरल ऑफ प्रोमोटी. जो जिनको आपने ऊपर ले गए हैं आप, उनका मोरल ज़्यादा है. इट गिव्स यू द ऑप्शन ऑफ बेटर असेसमेंट ऑफ एबिलिटीज़. आप एबिलिटीज़ की बेटर असेसमेंट कर सकते हैं. एप्लीकेंट्स आर रिलेटिवली नॉलेजेबल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस वैकेंसीज. उनको पता है कि इस जॉब पे मैं अच्छा रहूँगा या नहीं रहूँगा. इट इज़ अ लो कॉस्ट ऑप्शन एज कम्पेयर टू फॉर सर्टन जॉब्स. इट इज़ अ मोटिवेटर फॉर गुड परफॉर्मेंस. तो लोग रहते ही किस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए होते हैं कि हमारी प्रमोशन होती रहे. एंड हेयर यू हैव टू हायर ओनली एट एंट्री लेवल पोजीशंस.
ठीक है, तो these are few of the advantages of internal sources. There are certain disadvantages of internal sources. It may give you inbreeding. आपके पास कोई नए आइडियाज, कोई चीज़ नहीं आएगी, इनोवेशन नहीं आएगी, आपके पास नए वर्क मेथड्स नहीं आएंगे, नई टेक्नोलॉजीज नहीं आएंगी, नए कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज देयर इज इनब्रीडिंग. जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं वही चलते जा रहे हैं. इट में pose a problems, moral problems, possible moral problems हो सकते हैं for those who have not been promoted. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी होती है वो इसी वजह से होती है. Here may be certain elements of political fighting for promotion. कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, हर ग्रुप अपने बंदे को प्रमोट करने की कोशिश करता है कि हमारा बंदा प्रमोट हो, ये चीज़ हो सकती है. Here if you promote internally, there is a dire need for management development program. तो आपने जो initial क्या लेके entry level management पे लेके हैं उनको आप middle management या top position पे लेके जाएंगे, so you need providing certain management development program. So these are the advantages and disadvantages of internal programs. Then we are going to discuss recruitment sources that are external. तो इसमें वो सारे एप्लीकेंट्स जो हम हायर करते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज में आएंगे. इसमें एक ऑप्शन है जी डायरेक्ट एप्लीकेंट्स एंड रेफरल्स. हु आर डायरेक्ट एप्लीकेंट्स? दीज आर द पीपल हु अप्लाई फॉर अ वैकेंसी विदाउट प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐड नहीं दी, कोई उसने नोटिस नहीं लगाया, ये वैसे ही लोग जाके अप्लाई करते हैं. जब लोगों के पास जॉब नहीं होती तो फिर लोग जाके अप्लाई करेंगे, जो वो देखेंगे कि इसके लिए ये इस इंडस्ट्री में मैंने जॉब, मैंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जॉब करनी, तो लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को अपने सीवीज ड्रॉप करते हैं. तो ये क्या है डायरेक्ट एप्लीकेंट्स, कि उसने ऐड नहीं दी, आप वैसे ही जाके अप्लाई करते हैं. दूसरे हैं जी रेफरल्स. इसमें दीज आर द पीपल हु अप्लाई फॉर अ वैकेंसी बिकॉज समवन इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉम्प्टेड देम टू डू सो. तो ये क्या इंटरनल रेफरल्स हैं. इसमें जो करंट एम्प्लॉयज हैं वो अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड या अपने किसी और बंदे को जानने वालों को कहते हैं कि जी यहाँ पे वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई करें. ठीक है ना. तो इन दोनों के क्या बेनिफिट है, इन दोनों ऑप्शंस के? फॉर बोथ ऑफ दीज मेथड्स, डायरेक्ट एप्लीकेंट्स एंड रेफरल्स, इट इन्वॉल्व्स सर्टेन प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिलेक्शन और एडेड सेल्फ सिलेक्शन. ठीक है. तो जब आप डायरेक्ट विदाउट सीइंग एनी एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करते हो, सो यू हैव एक्चुअली गॉन फॉर सर्टेन सेल्फ सिलेक्शन कि आई एम सुटेबल फॉर दिस जॉब और फॉर दिस इंडस्ट्री और फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो आपने कुछ सेल्फ सिलेक्शन की है ना. तो ये क्या है, इट्स बेनिफिट फॉर डायरेक्ट एप्लीकेंट्स. और इन केस ऑफ रेफरल्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एडेड सेल्फ सिलेक्शन. तो जो आप एम्प्लॉय अपने जानने वाले को रेफर करेगा, तो वो कब करेगा? जब वो देखता है कि दिस पर्सन कैन बी अ सुटेबल एप्लीकेंट फॉर दैट जॉब, और ये ऑर्गेनाइजेशन में चल जाएगा, ये वो काम कर सकता है, ही इज एक्चुअली मीटिंग ऑल ऑफ द क्राइटेरिया फॉर दैट जॉब. सो इट एक्चुअली गिव्स एन एडवांटेज ऑफ सेल्फ सिलेक्शन और एडेड सेल्फ सिलेक्शन. अच्छा, इस ये क्या है जी, इट इज अ लो कॉस्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग. ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट लो होगी. Then some employers offer financial incentives to employees for referring applicants who are hired and perform acceptably. तो referrals लोग employees referrals वैसे नहीं देंगे. सर्टन ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उनको जहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देते हैं कि जी आप अगर किसी को रेफ़र करें, किसी भी कैंडिडेट को, और वो ज्वाइन करता है और वो हमारे साथ स्टे करता है फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड, लेट्स से 6 months और 1 year, देन यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सर्टन अमाउंट, 10,000, 20,000 और वन सैलरी ऑफ दैट, मंथली सैलरी ऑफ दैट एप्लीकेंट. इस तरह हो सकता है. इसमें अगर आप करते हैं डायरेक्ट एप्लीकेंट्स या रेफरल्स को अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, इट में एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट फ्रेश व्यू पॉइंट्स. अच्छा, रेफरल्स क्या कर सकते हैं, इट में लीड टू नेपोटिज्म, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग रिलेटिव्स. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ डायरेक्ट एप्लीकेंट्स और रेफरल्स. इसके साथ ही एक और ऑप्शन है इसी तरह की, इसे हम कहते हैं वॉक इन्स.
वॉक-इन्स, एक्चुअली ये वो लोग हैं जो से जाते हुए आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं कि जी मुझे जॉब चाहिए। फॉर सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी है तो उसमें लोग जाते जाते देख लेते हैं बाहर के वी नीड सिक्योरिटी गार्ड्स, और नीचे लिखा होता है इसका इतना हाइट हो, असला चलाना जानता हो, तो लोग जाते जाते चले, इसे हम कहते हैं वॉक-इन्स। ठीक है, तो सर्टन वॉक-इन्स, आप बैंक में सेल्स की जॉब के लोग चले जाते हैं तो वॉक-इन्स को भी आप एंटरटेन कर सकते हैं। दीज आर लो कॉस्ट, दीज हैव गॉन थ्रू सर्टन सेल्फ सिलेक्शन, और दे कैन बी प्रूव्ड अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसमें क्या है जी, डायरेक्ट एप्लीकेंट, रेफरल्स एंड वॉक-इन्स, these are the first source, external source of recruitment. What is the next? If next recruitment source, external source, can be advertisement in newspaper and magazines. यहाँ पे हमने ad देनी है. If we cannot actually fulfill the job requirements through this internal sources or direct applicants or referrals, we are to actually run an advertisement in newspaper and magazines. तो इसमें different options होती हैं, आप classified में देते हैं, बहुत ही सस्ती से वो आपके ad आ जाती है, 400 में आ जाता है 2-3 लाइन का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा unnecessary या less desirable group of applicants आपको generate कर देते हैं। फिर आप कह लें कि संडे के न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, क्वार्टर पेज का, या कह लें कि बैक पेज पे या फ्रंट पेज पे दे सकते हैं, जिससे ज़्यादा डिज़ायरेबल, थोड़े से इम्प्रूव्ड आपके पास एप्लीकेंट क्रिएट हो सकता है। अब इसमें डिफरेंट डिसीजंस हैं कि जी किस न्यूज़पेपर में हमने देना है, किस दिन पे देना है ऐड, और किस पेज पे होना चाहिए, पेज के किस पोजीशन पे होना चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट डिसीजंस दैट यू आर टू टेक बिफोर यू आर गोइंग टू प्लेस योर जॉब एड इन एनी न्यूज़पेपर। तो जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है उसका पूल एक और होगा, उर्दू के न्यूज़पेपर का पूल ऑफ एप्लीकेंट ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। अगर आप डॉन न्यूज़पेपर में देते हैं तो उससे कुछ और पूल ऑफ एप्लीकेंट्स आएगा, अगर आप न्यूज़ में देते हैं उससे कुछ और, नेशन में देते हैं कुछ और होगा एप्लीकेंट। सो इट डिफर, सो यू आर टू बी वेरी मच वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग वेयर टू प्लेस योर एड ऑन व्हाट डे, व्हाट पेज, विच पोजीशन, सारी चीज़ आपने देखी, कलर्स कैसे हो, लेआउट कैसे हो। नो, दिस स्लाइड शो दैट इफ यू आर गोइंग टू गिव योर एड, सो व्हाट शुड बी द कंटेंट्स, एड में क्या हो। सो हेयर यू कैन गिव इंफॉर्मेशन ऑन द जॉब एंड प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, आपने देनी जॉब की इंफॉर्मेशन देनी है और प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। सो हेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव जॉब टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे हमने कहा जॉब डिस्क्रिप्शन, ये वो चीज़ है। लोकेशन ऑफ जॉब के जी इसके क्या लोकेशन इस्लामाबाद है, क्या इसकी लोकेशन आपका प्रोडक्शन प्लांट दैट इज़ लोकेटेड एट डेर की कहाँ पे है, ये कराची में है, पेशावर में, कहाँ पे है जॉब, इसकी स्टार्टिंग पे रेंज क्या है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, वेदर टू सबमिट और रिज्यूमे और कवर लेटर, ये वहाँ पे होना चाहिए, क्या कॉल्स आप कर सकते हैं, वेयर टू ईमेल एप्लीकेशन और रिज्यूमे, ये वहाँ पे होना चाहिए, कैंडिडेट डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, दीज आर जॉब स्पेसिफिकेशन। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 3 to 5, you may give 3 to 5 key characteristics of successful candidate. That applicant should be a self-motivated person, should be having drive, having passion to work, should be enthusiastic one. तो ये आप different characteristics दे सकते हैं। और इसमें आप experience, ये आपने experience और plus educational qualification, ये लाजमी देनी है। क्या MBA आपको चाहिए, क्या BSc इंजीनियर चाहिए, क्या आपको BCS बंदा चाहिए, क्या आपको MA इंग्लिश चाहिए, किस तरह का आपको एप्लीकेंट चाहिए। और फिर नाउ फाइनली यू आर टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन दैट हमने पहले पढ़ा इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो यू कैन गिव इंफॉर्मेशन विद इन योर जॉब एड दैट दिस इज एन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, और उसका प्राइमरी बिजनेस, क्या आप ऑयल एक्सप्लोरेशन में हैं, क्या आप रिटेल बिजनेस में हैं,
क्या बैंकिंग सेक्टर में है, किस सेक्टर में, कौन आपका मेन बिजनेस क्या है. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन वी आर गोइंग टू प्लेस एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. नेक्स्ट इज जी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एंड सर्च फर्म्स. तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है. और अब यहाँ पे क्या है जी, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में गो and for a fee collected from employer or employee, these agencies do some preliminary screening and put the organization in touch with applicants. पहले भी मैंने आपको बताया कि या तो ये फीस चार्ज करेंगे एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉई से, और ये कुछ स्क्रीनिंग कर देंगे और ये आपस में इन टच करा देंगे, कॉन्टेक्ट करा देंगे एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ. Well, these employment agencies, with respect to recruiting agencies are employment agencies. They differ in level of services they provide, cost of service, policies, our type of applicants they provide. ये vary करती हैं employment agencies. Employment agencies focusing their effort. This is a particular type of employment agency that focus their efforts on executives, or managerial or professional positions. These are called executive search firms or headhunters. ठीक है ना. ये किन के लिए करते हैं? Who the people they search jobs or they facilitate employees who are already employed और senior positions पे हैं, ये उनके लिए. और ये बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं. ये they may charge 1/3 to 1/2 of first year salary of the executive. इतने ज़्यादा ये चार्ज करते हैं. पूरी ईयरली सैलरी का 1/2 या 1/3, एक रेंज हो सकती है कोई भी, लेकिन ये आपको विद इन नो टाइम या विद इन लेसर टाइम आपको प्रोवाइड, सो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करती है एक्चुअली. अच्छा, ये क्या फिर इसमें और कॉस्ट कैसे जाती है कि आपने जब एक बंदे को जॉब देनी है दैट इज वर्किंग एट सम हाई पोजीशन. So convincing a person to change his job requires the employer to offer something more attractive. Usually एक employee जो एक जगह पे 5 लाख ले रहा है, आपने अगर उसे लेना है एक as a CEO, so you are to offer 1.5 times or 2 times. वो 5 लाख या 5.5 लाख पे नहीं आपके पास आ रहा, वो 7, 8 या 10 लाख पे आएगा. So it's a very expensive choice to use these executive search firms. So third source of recruitment as external source is employment agencies and executive search firms. Next is fourth external source is colleges and universities. आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जॉब फेयर्स करती हैं, या जॉब फेयर के apart from these job fairs they contact universities and colleges and they hire from fresh candidates from these educational institutes. So this is a significant source for entry level professional and technical employees. इसमें आप बिजनेस ग्रेजुएट्स इस तरह हायर होते हैं, ये देख सकते हैं. इसमें इंजीनियर्स हायर होते हैं, इसमें आपके IT प्रोफेशनल इस तरह हायर हो रहते हैं. Here, how the employer would be making a choice to select university or college. कैसे university या college select करते हैं? So employer would be checking available job openings के हमारे पास कौन सी job openings हैं. ठीक है, क्या हमने engineers hire करने हैं, क्या हमने आर्ट एंड डिज़ाइन वाले लोग हायर करने हैं, क्या हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है, क्या हमने डॉक्टर्स हायर करने हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट अवेलेबल जॉब ओपनिंग्स दे वुड बी डिसाइडिंग अबाउट कॉलेज या यूनिवर्सिटी. रेपुटेशन ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब सारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमें डॉक्टर्स मिले KE से, हमें बिजनेस ग्रेजुएट्स मिले लम्स से, ठीक है ना, हमें इंजीनियर्स मिले UET लाहौर से. इनके ये प्रेफर्ड चॉइस होती हैं. अच्छा, फिर उनकी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिपेंड अपॉन देयर एक्सपीरियंस विद द प्लेसमेंट ऑफिस एंड प्रीवियस स्टूडेंट्स. तो हाउ प्रीवियस स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, विद दिस एम्प्लॉयर वुड बी अफेक्टिंग देयर फ्यूचर चॉइसेस. अच्छा, और फिर आपने टिपिकल सैलरी कितनी ऑफर करनी है. तो अगर आप लम्स में जाके सिलेक्शन करनी है, सो यू आर टू ऑफर वेरी हाई और लुक्रेटिव सैलरीज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एप्लीकेंट्स. अच्छा, अब इसके क्या बेनिफिट्स क्या हैं जी. इट अलाउ एम्प्लॉयज टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स इन हाई डिमांड स्पेशलिटीज एंड टू एक्सेप्ट इंटर्नशिप
or part-time jobs during their studies. तो ये जो options हैं तब exercise की जाती हैं by employers when they see that there is a shortage with respect to certain specialties. कोई आईटी की नई डेटाबेसेस हो सकते हैं, आईटी की नई लैंग्वेजेस हो सकती हैं, इंजीनियरिंग के नए डिसिप्लिन्स हो सकते हैं, या बहुत सी स्पेशलाइज किस्म के फील्ड्स हो सकते हैं. ये नई स्पेशलाइजेशन मेडिसिन की या सर्जरी की स्पेशलाइजेशन हो सकती है. इनके लिए ये उसमें रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. और विद इन दिस कॉलेज यूनिवर्सिटी रिक्रूटिंग दे can also offer internship or part-time jobs to these students during their studies, and later on they may hire these students as permanent employees. So this gives them a flexibility to engage with these students. इसमें और क्या है जी एक्सटर्नल सोर्सेज. इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटिंग हो सकती है. तो इसमें फर्स्ट सोर्स इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटिंग में है जी एम्प्लॉयर वेबसाइट. आपने कोई भी कंपनी की वेबसाइट देखी है तो उसमें उस वेबसाइट पे कैरियर इंफॉर्मेशन, जॉब्स या पोजीशंस इस तरह की लाजमी होती हैं. सो एक्चुअली जॉब सीकर्स में सेंड देयर रिज्यूमे थ्रू ईमेल और दे मे कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या डिफरेंट टेलीकॉम के फर्म्स या डिफरेंट बैंक्स में हायर और में रिक्रूट एप्लीकेंट्स थ्रू दिस वे थ्रू देयर ओन वेबसाइट्स. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जी इट कैन नॉट गिव राइज टू अ सफिशिएंट पूल ऑफ एप्लीकेंट. बहुत कम लोग जाके सर्च करते हैं. इसकी सोल्यूशन है थ्रू दिस जॉब बोर्ड्स. ये क्या है जी दे प्रोवाइड प्लेसेस फॉर एम्प्लॉयर्स टू पोस्ट जॉब्स एंड टू सर्च फॉर कैंडिडेट्स. यहाँ पे एम्प्लॉयर अपनी जॉब पोस्ट करते हैं या सर्च कर सकते हैं कैंडिडेट्स, और जॉब सीकर्स में सबमिट देयर रिज्यूमे ऑन दीज साइट्स. तो ये क्या है, इट्स सॉर्ट ऑफ मार्केट जहाँ पे एम्प्लॉयर्स भी हैं, एम्प्लॉइज भी हैं. सो दे में कम टू एन इंटरेक्शन, कम टू एन एग्रीमेंट ऑन दिस वेबसाइट. अब इसमें हमारे पास क्या है ब्राइट स्पायर, rosie.com, मुस्तकबिल.com. तो ये क्या है, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके थे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को. ये कुछ इंटरनेट की वेबसाइट है, इंटरनेट फर्म्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं रिक्रूटिंग के फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. दे ऑफर एन एफिशिएंट वे टू फाइंड अ मैच. बट जो बड़ी वेबसाइट्स हैं ये क्या दे में प्रोवाइड टू मैनी लीड्स ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको एक एम्प्लॉय चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की जो जॉब बोर्ड्स हैं, जो इस तरह की इंटरनेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो आपको 1000 या 2000 सीवीज दे देंगे जिसमें काम के बंदे वो कोई 5-10 ही होंगे. सो इट एक्चुअली overloads the HR department of an organization that is going to hire through these job boards. अब इसका solution क्या है? Through niche boards or professional websites. ठीक है ना? These are smaller, more tailored websites that focus on certain industries, occupations or geographic areas. तो जब कोई वेबसाइट है जो फोकस कर रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे फोकस कर रही है, इंजीनियर्स पे फोकस कर रही है, टेलीकॉम इंजीनियर्स पे फोकस कर रही है, केमिकल इंजीनियर्स पे फोकस कर रही है, डॉक्टर्स पे फोकस कर रही है, किसी और इस तरह आर्ट एंड डिज़ाइन के स्पेशलिस्ट पे, आईटी के स्पेशलिस्ट पे. So they may be, these niche boards are professional websites of professional associations may solve the problems of poor matches or leads of inferior quality. So they can solve these. So these are the few sources of external sources for recruitment. So after we have discussed external sources for recruitment, now we are going to discuss the advantages and disadvantages of external sources. Here if we hire through external sources, we may actually introduce new blood within our organization that would be taking new perspectives. Achha, next is this external hiring may be cheaper and faster than training professionals whom we are going to promote internally. एक जैसे आपने ट्रेनिंग इंजीनियर लिया है, उसे आप जब प्लांट मैनेजर बना रहे हैं या फैक्ट्री मैनेजर बना रहे हैं तो आपने उसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट देनी है ना, ट्रेनिंग. सो इट कैन बी, एक्सटर्नल हायरिंग कैन बी एन एफिशिएंट वे, फास्टर वे
are cheaper way to hire than train their internal professionals. अच्छा, इसमें और क्या हो सकता है? There is no chance for group of political supporters in an organization. तो यहाँ पे political वो groupings नहीं होगी, because there is no internal promotions and it may bring some new industry inside. तो ये जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं ये अपने हाई पोजीशंस फिल करते हैं बाय अट्रैक्टिंग the employees of competitor organization in order to bring a new industry inside. So this is an advantage of external recruiting. Here we would also be discussing disadvantages of external recruiting. We may not select someone who will fit the job or organization. So इसमें disadvantage क्या है कि हम कोई ऐसा बंदा select कर लेंगे जो job पे फिट नहीं होगा या जो ऑर्गेनाइजेशन पे फिट नहीं होगा, जबकि अगर हम इंटरनल हायर करते हैं तो उसमें वो जॉब पे या ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेनली फिट होता है, जॉब पे अगर नहीं भी है उस पे ऑर्गेनाइजेशन पे बड़ा वो फिट होता है. वेल दिस मे कॉज मोरल प्रॉब्लम फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन सिलेक्टेड. तो जब हम इंटरनल प्रमोशंस नहीं करेंगे, बाहर से हायर करेंगे, तो जो इंटरनल जिसका हक बनता था वो फिर दे फील डीमोरल. Then if we hire through external sources, so they may take a longer time to adjust and or be oriented with the organization. तो उनके adjustment time या orientation time ज़्यादा लगता है in order to understand the organization, in order to understand the work, and in order to understand the management or colleagues or supervisors. So these are the advantages and disadvantages of recruiting through external sources. Now how we can evaluate the quality of a source? हमने कहा कि different sources हैं, internal भी है, external भी हैं. internal में हमारा job posting है, databases हैं और दूसरी चीज़ें हैं, और external में हमारे पास job ads हैं, हमारे पास colleges and universities हैं, हमारे पास employee referrals हैं, दूसरी चीज़ें हैं. हम देखते हैं कि how we can evaluate the quality of a source. तो इसमें first one is that we can actually check the quality of a source through yield ratio. उसकी yield ratio क्या है? It expresses a percentage of applicants who successfully move from one stage of the recruitment selection process to the next. तो एक प्रोसेस में हमारे पास रिज्यूमे आए हैं 1000, उसमें से हमने कह लें कि कॉम्पिटेंट रिज्यूमे या हमारे पास जो काम के रिज्यूमे वो हमने सेलेक्ट किए हैं 50, ठीक है ना. और दूसरा जहाँ पे हमारे पास दूसरा एक मेथड जहाँ पे हमारे पास रिज्यूमे आया 100 और उसमें से हमने 50 सेलेक्ट कर लिए. तो यील्ड रेशो किसकी, वो जो सेकंड ऑफ जैसे 100 में से 50 सेलेक्ट करें उसकी यील्ड रेशो ज़्यादा एज कम्पेयर टू द सोर्स वेयर आउट ऑफ 1000 वी हैव सेलेक्टेड ओनली 50 रिज्यूमे. अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है कि कॉस्ट पर हायर. दिस इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट सोर्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैकेंसी. इसमें एक पूरे प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है और इसमें से हमने हायर कितने किए हैं. सो दिस इज एक्चुअली कॉस्ट पर हायर. एक बंदा हायर करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है. इसमें एक और चीज हम चेक कर सकते हैं, टाइम टू हायर, कि अगर हम डिफरेंट सोर्सेज यूज करते हैं, सो हाउ मच टाइम इट टेक्स रिक्रूट थ्रू डिफरेंट सोर्सेज. तो अगर हम एजेंसी यूज कर सकते हैं उसका टाइम कम होगा एज कम्पेयर टू दिस एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना, या यूनिवर्सिटी के थ्रू रिक्रूट करना या कोई और, ठीक है. रेफरल के थ्रू कम टाइम लगेगा. सो वी मे ऑल्सो चेक द टाइम ऑफ हायर इन ऑर्डर टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ सोर्स. अच्छा, ये यहाँ पे टेबल है दैट शोज the results of a hypothetical recruiting effort. अच्छा, इसमें ये different options हैं, different sources हैं. local university है, this would be an external source, और इसमें एक renowned university है, बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके जो रैंकिंग में आती है. एम्प्लॉय रेफरल्स हैं, इसमें एम्प्लॉय रेफरल्स हैं, न्यूज़पेपर एड्स हैं, ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स हैं और एग्जेक्टिव सर्च फर्म है. लोकल यूनिवर्सिटी में अगर हम
जाके अपने उनके साथ प्लेसमेंट ऑफिस या उनका दूसरी कोई भी ऑफिस है उसके साथ हम लाइजन करते हैं, तो रिज्यूमे जनरेटेड इसमें कितने हैं 200 हमें रिज्यूमे मिलते हैं कि उनका बैच ही 200 का है, वो सारे हमें रिज्यूमे मिल जाते हैं। आउट ऑफ दीज 200 हाउ मैनी इंटरव्यू ऑफर्स आर एक्सेप्टेड, कितने लोग इंटरव्यू पे आते हैं, आउट ऑफ 200 175 आ जाते हैं, तो यील्ड रेशियो क्या है 87%। इसी तरह आप देखें आउट ऑफ 400 रिज्यूमे जो रीनाउंड यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी उसमें से हमारे इंटरव्यू कैसे एक्सेप्ट हुए हैं, वो आउट ऑफ 400 100 एक्सेप्ट हुए हैं, तो यहाँ पे जो रेट है यील्ड रेशियो है दैट इज लेसर देन अ लोकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और एम्प्लॉय रेफरल्स, तो उसमें हमारे पास 50 एम्प्लॉय रेफरल्स आए हैं जिसमें से 45 ने एक्सेप्ट कर लिया है, इंटरव्यू की कॉल एक्सेप्ट कर ली है, तो इसका क्या है जी यील्ड रेशियो 90%, ये उससे भी ज़्यादा है, लोकल यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा है। इस तरह न्यूज़पेपर ऐड की आउट ऑफ 500 400 आते हैं, तो ये 80% है। ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स में 7000 हैं, आउट ऑफ 7000 500 ने एक्सेप्ट किया, इसकी रेशियो क्या है 7%। और एग्जेक्टिव सर्च फर्म में 20 हमारे पास आए हैं रिज्यूमे और 20 ने एक्सेप्ट कर लिया है इंटरव्यू ऑफर, और 100%। ये देखें कैसे वेरी करते हैं। सबसे ज़्यादा जो यील्ड रेशियो है इस स्टेज में एग्जेक्टिव सर्च फर्म की है, उसके बाद एम्प्लॉय रेफरल्स की हैं, फिर लोकल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद ये रीनाउंड यूनिवर्सिटी, और सबसे एंड पे आपके पास हैं ऑनलाइन बोर्ड्स जो वेबसाइट्स के थ्रू आप हायर करने चाहते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेज पे एप्लीकेंट जज्ड एक्सेप्टेबल, उसमें से हमने काम के बंदे कितने निकाले हैं, आउट ऑफ 175 हमने कहा कि ये सिर्फ 100 हमारे पास काम किया है, तो ये क्या रेशियो हुई यील्ड रेशियो इस स्टेज पे 57%। अच्छा, ये जो 100 हमारे पास रीनाउंड यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो इसमें से हमने 95 देखे हैं, हमारे पास रेशियो आई यील्ड रेशियो 95%। ये 45 में से हमने 40 अपने काम के बंदे निकाले 89%, इस तरह यहाँ पे 12% 70% और यहाँ पे 95%। सो हेयर एग्जेक्टिव सर्च फर्म और आपकी रीनाउंड यूनिवर्सिटी इनकी यील्ड रेशियो एट द स्टेज इज एट पार, और उससे थोड़ी कम है आपकी एम्प्लॉय रेफरल्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट स्टेज पे एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफर, तो इसमें से 100 में से 90 ने एक्सेप्ट कर ली, तो यहाँ पे 90%, 95 में से 10 ने एक्सेप्ट 11%। तो इस स्टेज पे आपके पास सबसे ज़्यादा जो है रेशो यील्ड रेशो दैट इज़ फॉर लोकल यूनिवर्सिटी 90%। अच्छा, ये है जी क्यूमुलेटिव यील्ड रेशो, क्यूमुलेटिव। तो ये कैसे कैलकुलेट होगी, बाय डिवाइडिंग ये 200 जो है आपने जो अपने फाइनल सेलेक्ट किए हैं ये 90, आपने 90 को डिवाइड करना है आउट ऑफ 200, 90 बाई 200। यहाँ पे 10 सेलेक्ट हुए, 10 बाई 400, 90 बाई 200, 10 बाई 400, 35 बाई 50। तो ये आपकी यील्ड क्यूमुलेटिव यील्ड रेशो आएगी। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव यील्ड रेशो देखें जी 45% लोकल यूनिवर्सिटी के लिए, 3% रीनाउंड यूनिवर्सिटी के लिए, 70% रेफरल्स के लिए, न्यूज़पेपर ऐड के थ्रू 5% और 3% ऑनलाइन बोर्ड्स और 75% एग्जेक्टिव सर्च फर्म के लिए। तो हेयर executive search firm is giving you the highest cumulative yield ratio. Apparently it seems that it is the most effective way, but it's not, because we are to take into account the cost per hire. तो cost per hire में देखें यहाँ पे ये total cost इस local university के साथ 30,000 और हमने हायर किए 90, तो cost per hire 333। यहाँ पे हमने रीनाउंड यूनिवर्सिटी के थ्रू 10 हायर किए हैं, उसके कॉस्ट क्या 50,000, तो इसकी कॉस्ट 5000 हो गया, उससे ज़्यादा लोकल यूनिवर्सिटी से। और ये रेफरल्स के थ्रू हमने 35 हायर किए हैं और इसके हमारी कॉस्ट है 15,000, तो इसमें 428 डॉलर। और हमारे पास ये फिर 800 कॉस्ट पर हायर आती है थ्रू न्यूज़पेपर ऐड, और हमारे पास ये 25 पर हायर आती है थ्रू ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स, ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशंस हैं उसके थ्रू,
और 6000 हाईएस्ट कॉस्ट थ्रू एग्जेक्टिव सर्च फर्म। ठीक है, तो आप देखें कि इसमें आपके पास जो फिजिबल ऑप्शंस हैं, ये जो रेफरल्स हैं, एम्प्लॉय रेफरल्स, उसमें यील्ड रेशियो भी 70%, वो भी ज़्यादा, और आपकी कॉस्ट भी मिनिमम है। इसी तरह आपकी जो लोकल यूनिवर्सिटी है वो भी अच्छे रिजल्ट दे रही है बाय गिविंग 45% यील्ड रेशियो एंड $33 पर हायर, और आपकी एग्जेक्टिव फर्म 75% दे रही है, लेकिन ये कॉस्टली है। अब ये कैसे आपने डिसाइड करना है? डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी। तो अगर एंट्री लेवल पोजीशन है तो आप लोकल यूनिवर्सिटी कर लेंगे। अगर कोई लोअर लेवल की पोजीशन या कह लें कि इतनी तो सिग्निफिकेंट नहीं है, आप एम्प्लॉय रेफरल्स। लेकिन अगर टॉप पोजीशन है, सो यू आर टू गो फॉर this executive search firm. So here by this way we can evaluate the quality of a particular source of recruitment. Here we have discussed two aspects of recruitment. We have discussed first of all recruitment policies, then recruitment के sources. Third aspect of recruitment is recruiter traits and behavior. So recruiter हमने उस मॉडल में डिस्कस किया था कि recruiter traits और behaviors जो अफेक्ट करते हैं characteristics of vacancies को भी और characteristics of applicants को भी अफेक्ट करते हैं. Well, recruiters may be specialists or experts at jobs. स्पेशलिस्ट क्या है? ये एचआर के पीपल होंगे. एक्सपर्ट्स एट जॉब, दे मे बी इधर सुपरवाइजर ऑफ दैट जॉब और दे मे बी करंट जॉब होल्डर्स. सो दीज recruiter traits and behavior actually affect the both vacancy, job vacancy and the applicant generated, but become involved late in the process. ये affect दोनों को करते हैं, लेकिन इसका effect late आएगा. ठीक है, तो ये अफेक्ट करेंगे एप्लीकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को व्हेन दे वुड बी एक्चुअली कम इनटू कांटेक्ट विद द एप्लीकेंट्स. ठीक है ना, और बाय डिजाइनिंग दीज पर्सनल पॉलिसी दे वुड बी अफेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब. अच्छा, अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्रूटर के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू अफेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब और अफेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेंट्स? Usually applicants perceive HR specialists as less credible. तो उनकी जो कह लें कि credibility of the job or of the organization or the quality of the job is lesser when they interact with the HR specialist. अच्छा, applicants जो हैं ये respond करते हैं positively to recruiters whom they perceive warm and informative. वो वाले लोग जो उनको enthusiastic, जो committed, जो loyal, जो dependable नज़र आते हैं, वो उनको अच्छे लगते हैं. और जो informative है, जो उनको information देते हैं कि जॉब कैसी है, इसमें काम क्या है, इसमें सुपरविजन कैसी होगी, इसमें आपका इंटरेक्शन कैसे होगा, इसमें ग्रोथ कैसे है, ठीक है, आपको कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा. सो एप्लीकेंट्स, जॉब एप्लीकेंट्स have a positive perception for the recruiters whom they perceive warm and informative. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जी, इफेक्ट ऑफ रिक्रूटर एज, जेंडर एंड रेस. दिस इज इनकंसिस्टेंट एंड इट रिक्वायर्स फर्दर रिसर्च दैट हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट. वेल, there may be numerous situational factors that would determine the effect of age or gender of the recruiter on the selection process. अच्छा, इसमें फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने रिक्रूटर के देख लिए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ द रिक्रूटर. दिस इज द लेवल ऑफ बिहेवियर. क्या है? इट डिटरमिन द लेवल ऑफ रियलिज्म इन रिक्रूटर्स मैसेज. जो रिक्रूटर मैसेज देते हैं कि जी आपको कब कॉल की जाएगी, जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यहाँ पे आपकी क्या प्रमोशन है, ये जो मैसेज पास ऑन करते हैं, इसकी लेवल ऑफ रियलिज्म कितना ये इट्स नियर टू रियलिटी, नियर टू एग्जैक्टनेस, कितना ये कह लें कि ऑनेस्ट है, उसको डिटरमिन करता बिहेवियर ऑफ द रिक्रूटर. बिकॉज रिक्रूटर में इन्फ्लेट और डिफ्लेट द क्वालिटीज ऑफ अ जॉब. सो इफ दे आर गिविंग अनरियलिस्टिक जॉब प्रीव्यूज, जॉब के आइडियाज, जॉब के जो कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स अनरियलिस्टिक अगर वो दिखाते हैं ना, so the people who would be joining that organization would perceive employer as
डिसीटफुल, उनको नजर आएगा ये जो एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें धोखा दे रही हैं, ये वो नहीं बात बताती जैसे इनकी एक्चुअल जॉब होती है, एंड रिजल्टेंटली टर्नओवर वुड बी हाई. So these are the recruiter traits and behavior that would be affecting the characteristics of the job, ठीक है ना, by giving information, by designing personnel policies, and they would be affecting the characteristics of applicants by passing on information or by interacting with these people. बहुत से लोग सिंपल जॉब्स इसलिए ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है विद द बिहेवियर ऑफ द रिक्रूटर. कुछ रिक्रूटर इतने कह ले कि लोगों को सार्कास्टिक रिमार्क्स देते हैं, इतने लोगों को प्रेसिंग रिमार्क्स देते हैं, इतने बुरे रिमार्क्स देते हैं दैट एप्लीकेंट्स डोंट फील that they feel that we have been treated immorally, or this is not a proper way of conducting interviews, or we have been treated unfairly. So these people simply refrain from joining these organizations where they have not been treated fairly or justly, and where they see that they have been dealt inferiorly. तो ये रिक्रूटर ट्रेड्स और बिहेवियर जो ना वो अफेक्ट करते हैं कि कैसे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे. अच्छा, अब इनके जो रिक्रूटर ट्रेड्स हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम कैसे एनहांस करते हैं या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. वेल, रिक्रूटर शुड बी प्रोवाइडेड टाइमली फीडबैक. रिक्रूटर शुड प्रोवाइड टाइमली फीडबैक. इनको कैसे अपना इम्पैक्ट बेहतर करना है कि टाइम पे फीडबैक दें, उनको फर्दर प्रोसेस, नेक्स्ट इंटरव्यू या नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में टाइम पे बताएं. रिक्रूटर्स शुड अवॉइड ऑफेंसिव बिहेवियर. कोई ऑफेंसिव बिहेवियर नहीं होने, कोई सार्कास्टिक रिमार्क्स नहीं होने चाहिए. बहुत आपने पोलाइटली और विद द काइंड वे यू आर टू ट्रीट दीज एप्लीकेंट्स बिकॉज दे आर योर गेस्ट. At that time they are your guests, so recruiter should be treating these employees very carefully, applicants very carefully, very gently आपने treat करना है. These recruiters should avoid behaving in ways that might convey the wrong impression about the organization. तो आपकी जो behavior है that determine the impression of organization, so you should not be actually negatively, adversely affecting the impression of the organization by treating employees in an inferior way. आप अपनी कोई aggression, कोई उसमें क्या लें कि negative चीज़ शो ना करें. आपका behavior बहुत ही polite, बहुत ही positive होना चाहिए with applicants. अच्छा, the organization can recruit with teams rather than individuals. So this can be another tactic in order to remove the negative effect of recruiter. कि एक बंदा इंटरव्यू करने के बजाय आप इंटरव्यू पैनल में कंडक्ट करें, सो द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वन रिक्रूटर मे बी कंपनसेटेड बाय द पॉजिटिव और ओवरवेलमिंग इफेक्ट ऑफ अनदर रिक्रूटर. आप रिक्रूटर को ट्रेन कर सकते हैं कि हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स. This was all about lecture number 6. Now I am going to give you the summary of lecture 6 here. Within this lecture we have discussed certain labor market components, that what is labor market की population क्या है, labor market की applicant क्या है, labor market का pool क्या है, वो चीज़ें हमने डिस्कस की. how these are determined, रिक्रूटमेंट क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट डिसीजंस. उसमें हमने कहा कि आपने डिसाइड करना है कि जी वेदर यू वुड बी डूइंग बाय योरसेल्फ इन हाउस और यू वुड बी गोइंग टू आउटसोर्स आपने करना है. फिर आपने क्या परमानेंट हायर करना है या फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग करनी है. फिर आपने इसमें हाउ यू वुड बी मेंटेनिंग डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स एज वेल एज हाउ यू वुड बी इंश्योरिंग द कंप्लायंस विद इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉज, वो आप कैसे करेंगे. देन वी हैव डिस्कस सर्टन रिक्रूटमेंट सोर्सेज. तो यहाँ हमने कहा कि जी रिक्रूटमेंट, हाउ टू रिक्रूट ह्यूमन रिसोर्सेज. तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिस्कस की. पर्सनल पॉलिसीज अफेक्ट करेंगी द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब्स.
रिक्रूटिंग सोर्सेज अफेक्ट करेंगी द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेंट्स, और रिक्रूटर ट्रेड्स एंड बिहेवियर अफेक्ट करेंगी जॉब एप्लीकेंट्स और आपके करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब, दोनों चीज़ों को अफेक्ट करेगी। हमारे पास जो रिक्रूटमेंट सोर्सेज हैं इसमें हमने कहा कि इंटरनल हैं और एक्सटर्नल हैं, ये दो सोर्स हैं। इंटरनल सोर्सेज हम यूज कर सकते हैं टू हायर पीपल एट सम सीनियर पोजीशंस or at some later position. Well, to hire certain entry level position we are to go for external sources. इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज में वेरियस ऑप्शंस हैं। इंटरनल सोर्सेज में हम डेटाबेसेस के थ्रू हायर कर सकते हैं, हम हायर कर सकते हैं जॉब पोस्टिंग्स के थ्रू हायर कर सकते हैं, हम रिक्रूट कर सकते हैं अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को। एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं, वी कैन गो फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, वी कैन गो फॉर दीज एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम हायर कर सकते हैं, और इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट रिक्रूटर ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स हम डिस्कस किए हैं। ये दोनों चीज़ों को पॉलिसीज ये रिक्रूटर ट्रेड्स एंड बिहेवियर अफेक्ट करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब एज वेल एज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेंट, और द मैच बिटवीन the characteristics of job and characteristics of applicant would determine the final people who would be joining your organization. So this was a summary of lecture 6. Now these are the reference books that I have used for this lecture. So most of the lecture are based on this first book, Fundamentals of Human Resource Management, Raymond A. Noah, John Hollenbeck, Barry Gerhardt, Patrick Wright, and second we have also taken some of the guidance from this HRM by Robert Mathis and John Jackson, published by Cengage Learning, Delhi. Well, this was all about lecture 6. Now thank you very much. Assalamu alaikum.